नमस्कार 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 मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी। मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, so I think there's a whole delegation at the moment surrounding Mr. Jharange Patil. Exactly, sir. And I hope he agrees. You know, it'll be a terrible tragedy if he actually, if something were to happen to him. He's a very good man, very sincere man, and the way he's, started his second fast. You got a couple of judges there. I could see Uday Samant there. I could see Bachchu Kadu there. I could see so many of the other ministers from Mr. Eknath Shinde's cabinet. And I hope that they arrive at something or the other. At least they're able to convince him that, hey, listen, we're trying our best here. What we can't do right now. क्योंकि पूरा मराठा आरक्षण कैसे देंगे मेरी समझ के बारे very frankly, they will not be able to give it right away. It's very difficult. I mean, the government's intention is clear. There was an all-party meeting, and all parties signed the resolution. Apart from Uddhav Thackeray, who was not invited. Yeah, Anil Parab was there, I think. There was Anil Parab was there. Yes. As a leader of the party, Uddhav Thackeray was not there, Sharad Pawar was there. But if all parties together have decided that we are going to be with the Marathas. In fact, Uddhav Thackeray ji in a press conference said that we want this problems to end and we are with the Maratha reservation. We want to go for it. In fact, he said 48 MPs should resign en masse, submit their resignation and tell the Prime Minister, you need to do it. So, the party stand also was clear. All party stand was clear. Now, there is some formalities which all parties requested Jharange Patil that you withdraw your fast, your work is being done. It has been unanimously approved. All the parties said we need to have sympathetic view where Maratha reservations are concerned. So I don't think. I hope he agrees. Yes. And his initial stance that Kunbis at least start with issuing Kunbi certificates. That is being done. That is being done. So there is no reason for him to continue with the fast when now again he has extended. He says that I will fast till all the demands are met. Now that is stretching it a little bit more. If the government has got 2 steps forward, he needs to. Which is absolutely fine. But my point is, how are they going to convince the Supreme Court that the Marathas are socially backward? Economically backward is one thing, socially backward is another. How do you prove that you are socially backward? There are 96 groupings within the Marathas. How are you going to prove that? Because, Kunbis is only one part of the entire Maratha universe. There are so many others. So, it's a very complicated issue. If you remember in 1952, Marathas were designated as a forward caste. The Mandal Commission designated the Marathas as a forward caste. Now they want to be, if they want to prove that they are backward, you'll have to prove you are socially backward, not just economically backward. Otherwise, the EWS reservation, which is already there, applies to you. Now, economically backward is different from socially backward. Now, I hope somebody somewhere knows that legal distinction and is able to argue in front of the Supreme Court, because the Supreme Court, after this 102nd Amendment of the Constitution, is bound by the law unless Mr. Modi changes the law in Parliament. And if they do, Pradeep ji, you open up the floodgates. Here, there's again, now you see Ramdas Kadam and Narayan Rane said, we will not take Kunbi certificates. Because we are not Kunbi. हम Shahi Maratha हैं, हम Kunbi नहीं हैं. No, but Shahu Maharaj, the descendant of the great Shahu Maharaj, he said, Chhatrapati Shahu Maharaj, he said, Kunbis and Marathas are the same. Yes. 6 months they used to be till the field and 6 months. And 6 months was in warfare. Yes. 6 months in warfare, 6 months in the field. So they both are the same. They were Marathas, they were warriors as well as people who were farmers. Then Pradeep ji, what happens to the Dangars? What happens to the coolies? What happens to the Nais? Supriya Sule has talked about 4 things yesterday. Yes. Now Supriya Sule is very, very clever when she talks, and she is very, very particular about the choosiest words she uses. She talks about Marathas, she talks about Dangars, she talks about Lingayats, she talked about Muslim reservation. Yes. Now the first time somebody in Maharashtra has again taken up the Muslim reservation issue. But Muslims already have reservation. Anyway, under the Mandal Commission report, you already have, there are about 12 or 14 Pasmanda Muslim communities which are already under reservation. Her demand is the government is going back and promises yes. to all these 4 sections of the society.
Right, but we'll talk about that. I'm sure we'll have, when we have Mr. Ali Daruwala over here and when we have Mr. Suresh Chandra Rajhans and all the other political leaders, we're going to talk about that. At the moment with us, we have a genius. I mean, this man is amazing. This man, he's a treasure of Bollywood. So, not just the Bollywood, of the whole Indian cultural universe. This man is Sudesh Bhonsle. I don't even know how to describe him. Sudesh Bhonsle sahab, namaskar. Namaskar, sir. Good evening. Good evening, sir. How are you? We are meeting again, and I'm meeting you with a beard. Last time we met in Sahara on the RKB show, I was without a beard. Yeah, I know. I remember. Along with me, of course, is Pradeep I'm ji. trying to figure out, is this the same person I met? Same person. Same person. Same person. मैंने आवाज से पहचान लिया लेकिन. सर आप तो आवाज के बादशाह हैं. आप तो सर आवाज के जादूगर हैं, आवाज के बादशाह हैं. Thank you. और how do you remain the same? मतलब एक रिंकल तक नहीं क्या यार? कॉस्मेटिक सर्जरी करा के लाए हो, फेस लिफ्ट करा के लाए हो. Who is your cosmetic surgeon? हाँ, वो लैब और सारी मशीनरी घर में बिठवाई है मैंने. अच्छा घर में बिठवाई. एक रिंकल भी आती तो मशीन घुमा लेता हूँ. हाय शाबाश. तो खुद ही डॉक्टर भी हो, खुद ही हर चीज. Brilliant. Absolutely. और इसमें मेरे पत्नी का बहुत हाथ है. जी. वो मिठाई सामने आती, जैसे मेरे हाथ आगे बढ़ते हो कहते ये हाथ पीछे रखो ठाकुर. That was Sanjeev Kumar. Fantastic. Absolutely fantastic. You know what? How are you, sir? Absolutely fine. How are you, sir? Perfect. मतलब मैं बहुत सालों से मिस कर रहा था. मुझे अभी भी वो याद है इंटरव्यू जो आपके गोरेगांव मेरे घर से 2 मिनट पे स्टूडियो था आपका. जी था. एंड सो नाइस मीटिंग यू सर. So nice to meet you again. And Pradeep ji and I do this तुम्हारा show every day. नमस्कार. आपको भी नमस्कार. So kind of you. बहुत ही सीरियस विषय पे आप लोग दोनों चर्चा कर रहे थे. जी. भगवान करे सब अच्छा हो, जल्दी हो. जल्दी हो और सर. हम लोग सब प्यार से रहें एक दूसरे के साथ मिलजुल के. जी दुरुस्त बात है. मतलब ये तो अब ये तो चलता रहेगा सर. दिस इज पॉलिटिक्स. चुनाव आने वाले हैं, ये तो होगा ही, मालूम है आपको. हाँ जी. लेकिन सर ऐसा है, ये आप अकेले शख्स हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सुधार कर दें. सब लोग बच्चन साहब की कॉपी करते हैं, सब लोग जो है संजीव कुमार साहब की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अनिल कपूर साहब की कोशिश करते हैं. वो क्या है, अमजद खान, गब्बर सिंह, वो तो बच्चा करता है, कितने आदमी थे वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन आप अकेले हैं, अकेले, फ्रॉम व्हाटएवर आई नो, हु कैन एक्चुअली मिमिक विनोद खन्ना साहब. I don't know of anybody else who can do it. How do you do that? Vinod Khanna साहब is not, he does not have a distinctive mannerism. जैसे अमिताभ बच्चन साहब का एक मैनरिज्म है. You recognize his voice. उनकी आवाज़ जो है बिल्कुल ज़बरदस्त है. इसी तरह अमजद खान साहब की है. इसी तरह वो क्या, वो छकास वकास जो भी अनिल कपूर साहब करते हैं. लेकिन विनोद खन्ना, how do you do that यार? अभी how did you decide to do Vinod Khanna and how does it come out so perfectly? सर एक्चुअली मैं कहूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम. वो अचानक ऊपर से एक सिग्नल आ जाता है और आज हाँ कुछ वॉइसेस मैंने, जैसे संजीव कुमार साहब को मैंने किसी टीवी अपना स्टेज पर, एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे हमारे बहुत सीनियर कॉमेडियन जॉनी विस्की साहब. जॉनी विस्की बहुत पहले हाँ, ये बहुत साल पहले. तो उनको देखा था मैंने कि तबस्सुम जी उनका इंटरव्यू कर रही थी और तबस्सुम जी संजीव कुमार जी से पूछती है कि संजीव भाई आपने शादी क्यों नहीं की? तो कहते हैं तबस्सुम क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो वो कहते कि हाँ मेरी शादी तो हो चुकी है. तो मैं किससे शादी करूंगा? तो ये जब मैंने आवाज सुनी तो मैंने कहा अरे वाह, ये आवाज भी कोई नकल कर सकता है. और उस चक्कर में मैंने 10 दिन मेरा गला जो है बिगड़ गया था. मतलब वो अचानक फिर एक दिन आ गए. तो कुछ वॉइसेस मैंने मेहनत से मतलब आई और कुछ वॉइसेस ना, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, गाड़ी में बम है सिकंदर, तो ये अचानक मैं बोल गया विनोद खन्ना जी का जी. तो जैसे बजा साहब आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ. तो ये कुछ आवाजें ऐसे. और साहब ये तो है हमने सुना है कि आपने एक बार अमिताभ बच्चन साहब की आवाज बना करके किसी को तंग भी किया था रात को फोन करके. इज दैट ट्रू? सर मैंने वो मैं नहीं था.
आप ही के स्टूडियो में, सहारा स्टूडियो में अमित जी को मेरी आवाज रिकॉर्ड करनी थी जी और किसी ने बच्चन साहब से कहा कि वो जो स्टूडियो का टाइमिंग है वो स्लॉट वो सपना मुखर्जी के ने बुक किया है। जी। तो अगर अमित जी से कहा अगर आप उनको फोन करेंगे तो वो स्टूडियो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन काट दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप हैं? नहीं नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। ये रियल किस्सा हुआ था। उसी तरह मिठुन दा बहुत सोशल वर्क करते हैं। मिठुन चक्रवर्ती जी बंगाल में बच्चों की स्कूल के लिए, गरीब बच्चों के लिए। तो उन्होंने एक बार मोहम्मद अजीज साहब को फोन किया और उनका फोन करना मतलब कैसे ना, जैसे रात को 2-2:30 के बाद। तो मुन्ना दा हमें मिठुन दा। बोले सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हो, नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या रहा सुदेश कर रहे तुम लोग, मैं मिठुन दा बोल रहा हूँ। तो उसने और कोइंसिडेंटली उन्होंने सेकंड फोन सपना जी को फोन किया। बोले स्वप्ना हमें मिठुन दा। सुदेश टाइम तो देखो, ये वक्त है कोई फोन करने का? अरे क्या रहा तुम लोग सब सुदेश कर रहा है। तो ये वो तो मैं खुद नहीं करता लेकिन हो जाता है। और अमित जी बोलते यार कमाल हो रहा है यार, गाने मैं गाता हूँ लोग बोलते सुदेश भोसले ने गाया, सुदेश भोसले गाते तो बोलता अमिताभ बच्चन ने गाया, ये हो क्या रहा। तो होता है कभी कभी। और आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। ये कौन बनेगा करोड़पति जब पहला सीजन था 21 साल पहले जी, तो उन्होंने एक उनका जो ऑप्शन है फोन अ फ्रेंड, तो उन्होंने बंगाल में फोन किया। और बंगाल में ऊपर वाले की दुआ से बहुत मेरे चाहने वाले हैं। तो उन्होंने फोन किया, मैं बोल रहा हूं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से और आपके मित्र यहाँ बैठे हैं, अगली आवाज होगी उनकी। तो सामने से आवाज आई, कहीं सुदेश भोसले ना था? बोले अरे नहीं मैं अमिताभ बच्चन। बोले नहीं उनका भी तो आवाज ऐसा ही है। बोले हे भगवान। तो अमित जी बोलते हे भगवान कैसे यकीन दिलाऊं आपको? नहीं अभी आपने भगवान का नाम लिया ना, फिर तो आप अमिताभ बच्चन है। कौन बनेगा करोड़पति से मैं बोल रहा हूँ सुदेश भोसले। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट डूइंग मिस्टर बच्चन साहब की आवाज सबसे पहली बार आपने कब कॉपी करी और बच्चन साहब ने कब सुनी? जी मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं एक पेंटर भी हूं। तो 74 से 82 तक मैं फिल्म पोस्टर्स पेंट किया करता था मेरे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी एनआर भोसले वो बहुत बड़े चित्रकार थे। मुगले आजम, झनक झनक पायल बजे, दोस्ती, उस समय से जो हैंड पेंटेड ऑयल पेंट के जो होर्डिंग्स लगते थे वो बनाते थे। और 74 में मेरी पहली फिल्म थी प्रेम नगर। मुंबई के सारे बोर्ड्स होर्डिंग्स मेरे हाथ से। प्रेम नगर, अब वो राजेश खन्ना वाली, राजेश खन्ना जी वो प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, बाय बाय मिस गुड नाइट। यस जी। एंड 74 से 82 तक मैं सिर्फ पेंटिंग करता था। और मेरी माताजी सुमन भोसले, शी वाज अ क्लासिकल सिंगर। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर आगरा की, अहमद हुसैन खान साहब की शिष्या। तो वो 24 घंटे क्लासिकल म्यूजिक चलता था। लेकिन मैं थोड़ा अच्छा, हमारे घर में ना बॉलीवुड का म्यूजिक सुनना बैंड था। और क्योंकि हम लोग गोवा वाले हैं तो प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत, सुगम संगीत, इसके अलावा पिताजी बिल्कुल अलाउड नहीं था। पिताजी जब बाहर चले जाते थे तो मैं अमीन सयानी, विविध भारती, ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया। और जैसे पिताजी आए मुंबई जो पिताजी आए और जैसे पिताजी बाहर गए, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो ये माहौल था और ये मैं गाता था। फिर अचानक एक दिन अमित जी से बहुत पहले मैं सैगल साहब की आवाज अचानक गले से निकली, गमगीन मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय ये जालिम जमाना। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी। तो ये मजाक में मैं करता था। और एक दिन
मुकद्दर का सिकंदर फिल्म मैंने देखी और दूसरे दिन स्कूल में था, 11th में था मैं, हायर सेकेंडरी में। किसी को देख के बोला, ए सोना चांद दरवाजा खोल दे। तो लड़की ने तो नहीं सुना, लेकिन मेरे दोस्त बोले, यार ये जो भैया अभी तूने किया वो बच्चन साहब की तरह था। और फिर हमने मजाक मजाक में रिकॉर्ड किया। और मेरा दोस्त एक टेप रिकॉर्डर लेके आया घर में, बोले कल जो तूने बोला अमित जी की तरह। मतलब मत छोड़ यार, कहाँ अमित जी कहाँ मैं। तो वो देव साहब का फैन था। मतलब टीचर उसको बोलती थी, मिलिंद स्टैंड अप, तो बोलते यस टीचर। और माँ बोलती थी कि मिलिंद कैसे कपड़े पहना है गंदे, कुछ ढंग के कपड़े पहनते। बोलते तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो उसने मुझे पूछा कि आजकल आपके बारे में बहुत कुछ सुना जा रहा है। अरे कुछ नहीं भैया, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है, ये मीडिया वाले आपके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। अरे मीडिया वाले तो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, आप अपना काम कीजिए। तो ये जब मैंने रिकॉर्डिंग इसकी सुनी तो मुझे भी लगा कि हाँ यार अमित जी जैसा। फिर मैंने उस वक्त उनके जो सुपर हिट मूवीज थी, उनके वीडियो कैसेट्स मिलते थे उस वक्त जी। तो उनको मैंने लाया, दीवार, जंजीर वगैरह। फिर मैं उनको लिखा, मैंने बाहर किया, फिर बाथरूम के कोने में जाके घंटों प्रैक्टिस करता था, और ताकि वो रिवर्ब इफेक्ट मिले। और जहाँ जहाँ मौका मिलता था मैं वो वॉइस करता था। और उस वक्त जितने मिमिक्री आर्टिस्ट थे, वो जैसे दादा मुनि, ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, इस दिलीप साहब, इनकी मिमिक्री करते थे। अमिताभ बच्चन लोगों ने पहली बार स्टेज पर सुना और कहते हैं ना, उनको यकीन नहीं, और फिर धीरे धीरे बात अमित जी तक पहुंच गई। So what is the first time when you met Mr. बच्चन और बच्चन साहब ने अपनी आवाज आपके मुंह से सुनी? जी, वो मैं क्या करता, 82 में मैंने मेलोडी मेकर्स एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। और उस वक्त मैंने 82 से 87 तक मैं किशोर दा के लगभग हर शो में उनका मैं एंकर हुआ करता था। मैं रफी साहब के गाने गाकर एक दो, फिर मैं किशोर दा को स्टेज पे बुलाता था और फिर घंटों उनको देखता विंग्स में बैठ के। और मैंने 80s में जीतू जी, श्रीदेवी जी, असरानी जी, शक्ति कपूर साहब, अमजद भाई, सबके साथ बहुत, मतलब 80s में साल में 4 टूर्स करते थे हम लोग, एक एक महीने के यूएसए। तो मैं अगर कभी जाता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के वहां, तो बोले हाँ उसको बुला बुला, बोला कल असरानी बहुत तारीफ कर रहे थे। या बप्पी दा के यहाँ गया तो बोले बुला उसको अंदर, वो कल शक्ति जी बहुत तारीफ करे। तो एक्चुअली जो कहते ना वॉचमैन भगा देता, वो मेरे साथ हुआ नहीं। और लक्ष्मी जी ने मुझे सुना और सुदेश बोले एक काम करते हैं, एक गाना हमको करना लेकिन अमित जी की आवाज में, क्योंकि उनको पता था मैं अमित जी की नकल करता हूँ। अमित जी के उस वक्त ना रंग बरसे और मेरे अंगने में वो बहुत हिट थे, और मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस भी मालूम थी, और वो गाने में स्टेज पे गाया करता था। तो लक्ष्मी जी ने मुझे अचानक बुलाया और अजूबा फिल्म के लिए मुझे पहला गाना उन्होंने गवाया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो शशि कपूर डायरेक्टर थे उस फिल्म के। तो लक्ष्मी जी ने शशि जी से कहा, ये जो लड़का है ये अमिताभ बच्चन की साउंड बहुत अच्छी बनाता है। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वही जो गाना है, वो जो मेरे पास लिखे हुए शब्द थे, वो मैंने कहा, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहा मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोले परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। और एक गाना मैंने गाया मोहम्मद अजीज साहब के साथ, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और जब बच्चन साहब ने ये गाना सुना तो बोले ये है कौन, मुझे इसको देखना है। तो शशि जी मुझे ले गए फिल्म सिटी, और मेरा हाथ पकड़ के अमित जी, साक्षात अमिताभ बच्चन साहब को मैं देख रहा था, सर हाथ पैर सब कुछ कांप रहा था मेरा। और मैं बोले सर, तो शशि जी बोले अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं उनको कि यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चन साहब के सामने मैं खड़ा हूं। तो बोले सर नमस्ते। तो सामने से वो कहते हैं हाथ जोड़ के कि भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया। तो ये उनका पहला, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि गाना मैंने कब कहा। हाँ, वाह। और उन्होंने फिर कहा कि देखो अब मैं गाऊंगा नहीं, अब जो भी है सुदेश गाएगा मेरे गाने। और उसके बाद उनके जो भी शोज होते थे मुझे बच्चन साहब ले जाने लगे। तो स्टेज पे पब्लिक के सामने वो गा रहे और विंग्स में से मैं उनकी आवाज में उनको लिपसिंग करता था। और ये सुन के, ये देख के लक्ष्मी जी को ये आइडिया आया कि यार ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आज तक हुआ नहीं हिस्ट्री में,
कि कोई सिंगर उनके मैनरिज्म्स कॉपी किए हैं लेकिन वॉइस नहीं। और क्योंकि बच्चन साहब की सिंगिंग वॉइस भी लोगों को पता थी, तो लक्ष्मी जी ने एक्सपेरिमेंट किया, बोले स्टूडेंट मैंने कुछ लिखा है, अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन। तो इस तरह ये गाना बना, खिचड़ी पकी। और बोले वो कैसे गाएंगे, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे। और फिर अमित जी के सामने विदाउट माइक्रोफोन मुझे कहा सुरेश सुनाओ, और अमित जी से कहा कि देखिए हमने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। और जैसे अमित जी ने सुना बोले वेरी गुड, टेक करो। और सर आपको एक बात बता दूं, उसमें एक लाइन है, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो ये कंट्रीब्यूशन या ये जो भी है, ये अमित जी की आइडिया है। बोले सर मैं साउथ अफ्रीका में एक पब में बैठा था, रेगुलर कोई सिंगर गा रही थी, अचानक, और जो भी है जो लोग पी रहे थे, खा रहे थे, अचानक एक सिंगर ने आके जैसे ही ये लाइन आई, पूरी ऑडियंस फ्लोर पे आके डांस करने लगे। तो अचानक मेरे मुंह से निकला जुम्मा दे 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 चुम्मा दे दे दे, और वेरी गुड। और ये फिर गाने में बाद में एडिशन हुआ। फैंटास्टिक। और ये गाना, जी जी बोलिए। ये गाना बच्चन साहब के सामने मैंने रिकॉर्ड किया रात के 2 बजे। और कहते ना, और इस रिकॉर्डिंग से पहले लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने मुझे कहा था कि सुदेश जिस दिन ये गाना आएगा देख तू कहां से कहां पहुंचेगा। बिफोर द रिकॉर्डिंग, 6 months बिफोर द रिकॉर्डिंग। What a monster hit! What a hit! So Yeah, he was the idol. Amitabh Bachchan is your idol for all time. Inspiration, idol, हर चीज अमिताभ बच्चन Yeah. है सुदेश का। You, I mean, any reason? I mean, बोलते हैं ना कुछ, they love dialogues भी। आप तो you are good in dialogues. People get inspired by some dialogues also, जैसे राजेश खन्ना जी के बाबू मशाए जिंदगी और मौत, ऐसे कोई dialogues है सर जो आप inspired थे? जी जी, मैं सर अमिताभ बच्चन साहब, विनोद खन्ना जी और काका से राजेश खन्ना जी से इंस्पायर्ड था। हालांकि मैंने फिल्में देखी नहीं, 24 घंटे पोस्टर्स पेंट कर रहा था, लेकिन कभी फिल्में ज्यादा देखी नहीं। लेकिन वो मैं स्टेज पे कहता हूँ, रो मत पुष्पा ये तो दुनिया की रीत है, और ये दुनिया वाले ना तो खुद चैन से जीते हैं, न दूसरों को चैन से जीतने देते हैं। आई हेट यस पुष्पा, इन आंसू को पोंछ दो, ये बात की है। तो ये मैं करता था मजाक मजाक में। लेकिन बच्चन साहब ने बोला ना, पीटर तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ये उनकी दीवार। और मैंने जुम्मा चुम्मा के बाद सर जैसे जैसे उनका चेहरा, उनका हुलिया और उनकी वॉइस भी चेंज हुई ना, तो जैसे मैंने कहा था जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, उसके बाद मैंने जो शावा शावा गाया, वो अभी उनकी कौन बनेगा करोड़पति की जो लोगों को आवाज है ना, चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो मैंने एक पंजा पर कुड़ी पंजा पर कुड़ी पटाखा दिल चुरा के लग गई होई सोना सोना। तो मैंने भी उनके एज के साथ अपनी वॉइस को मैं बदलता गया। लेकिन हाँ, ही वॉज ऑलवेज एंड ऑलवेज बी माई इंस्पिरेशन, ऑलवेज। और कई लोगों को इंस्पायर किया उन्होंने। You know, your voice is fantastic, Amitabh. Heavy voice. Amitabh Bachchan, जिस प्रकार से Amitabh Bachchan, fantastic. You know, and heavy voices. Even KL Saigal, हम लोग समझते हैं you can sing. But sir, Talat Mahmood, how can you know? आप जेल Talat Mahmood से कैसे करते हो? I mean, I heard you also love to sing Talat Mahmood. That's, I mean, it's going from this extreme to this extreme. जी, before answering एक सैंपल देता हूँ। फिर वही शाम, Wow. वही हम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। क्या बात है? Oh man, this is something else. But you have to compress yourself 100 times, I think. जो आवाज जो पहले उसको आप compress करके 100 times अंदर दबा के
फिर गाते जी हैं। जी It's a challenge, singing at a totally different pitch. Wow. थैंक Wow. यू Wow. Really wonderful. But I tell you what, सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी that सुदेश साहब, ever since I've known him, जी। ये he's not just a mimicry artist. सबसे बड़ी बात ये है, आप अपना भी कुछ डालते हैं किसी की आवाज में। मतलब ऐसा नहीं जी। कि सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब की आवाज, जैसे जुम्मा चुम्मा दे दे, ठीक है बच्चन जी। साहब गा रहे हैं, हम पिक्चर है, लेकिन जी। उस गाने में सुदेश भोंसले भी है, सीधी बात है। बिल्कुल है, हाँ, अगर बिल्कुल आप है, ध्यान से सुने तो सुदेश भोंसले भी है, अकेले बच्चन साहब नहीं है। सो बिल्कुल बिल्कुल। आपने पकड़ लिया मुझे। क्योंकि क्योंकि साहब मैंने देखा है, मतलब आप अपनी चीज भी डालते हैं हर चीज में, इवन इन मिमिक्री, इवन इन अदर थिंग, बिकॉज यू डोंट जस्ट कॉपी, यू आर अ क्रिएटिव मैन, व्हिच इज फैंटास्टिक। सो व्हेन डिड दैट स्टार्ट? क्योंकि क्या है, जब भी, बिकॉज इट्स वेरी इजी कि मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत होते हैं साहब हर जगह पर, मतलब कोई ना कोई किसी की आवाज कॉपी कर लेता है, कुछ कर लेता है, लेकिन जहां तक आपका सवाल है, व्हाट सेट्स यू अपार्ट इज जो आप अपना जो अंदर डालते हैं, उसकी वजह से आई थिंक यू हैव लास्टेड सो लॉन्ग एंड यू हैव डन सच वंडरफुल थिंग्स। सो व्हेन डिड दैट स्टार्ट, उसके बारे में बताइए, क्योंकि पहले तो आप सिर्फ कॉपी करते होंगे, फिर अपना कुछ डालना आपने कब से शुरू किया, वो जरा बताइए। जी, वो एक्चुअली क्योंकि मिमिक्री करना, 2 लाइनें स्टेज पे बोलना, मतलब मच इजियर, लेकिन जैसे एक 10 मिनट का था ये जुम्मा चुम्मा हाई पिच सॉन्ग, उसको वॉइस को मेंटेन करना, प्लस जैसे मैंने कुछ साल बाद मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आवाज है नहीं कोई, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन ये कर रहा हूँ, फिर अजीज साहब कर रहा हूँ, असरानी, तो मेरे जो फैमिली या मेरे वेल विशर, सुदेश ये नकलची तू कब तक बने अपनी आवाज, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चला गया। फिर मैं आनंद जी भाई के पास गया, कल्याण जी, आनंद जी भाई, मैं थोड़ा परेशान, क्या करूं मैं, मेरी आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता, जब बोलते लोग आज आपने संजीव कुमार ने किया तो क्या करूं, बोले आनंद जी भाई, बोले सुदेश कुछ नहीं करना, तेरे जैसे कितने हैं इंडिया में, तू अकेला है, ऊपर वाला तेरी गाड़ी चला रहा है, अपने हाथों से इसको डिरेल मत कर, जो चल रहा है चुपचाप चल। तो उस दिन से मेरा माइंड क्लियर हो गया। और ये क्या हुआ कि पहले बेसिकली मैं बहुत सीरियस, बहुत शाय, बहुत शांत आदमी हूँ, मतलब मुझे भीड़ भड़क का, पार्टियां, शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, मैं वैसे कॉमेडियन बन गया मैं खुद नहीं जानता। और ये कैसे हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर पे बैठ के टीवी में बच्चन साहब और अनुपम खेर साहब की मूवी देख रहा था, उसमें ये मुझे लग रहा ऊपर वाला करा रहा है मुझसे, जबरदस्ती नहीं, मतलब उसकी इच्छा से हो रहे, तो बच्चन साहब अनुपम खेर जी को एक चांटा मारते, फिल्म का नाम याद, तो अनुपम खेर जी बोलते तू मेरा बेटा है बेटे, मिस्टर डेविड तो विद इन सेकेंड्स मैंने वो डायलॉग बोल दिया, और मैंने कहा अरे अनुपम खेर साहब आ गए मुझे। और उसके बाद, हेलो जी बोलिए सर प्लीज। हाँ, उसके बाद एक गाना आया था अपने गल्फ कंट्री का, कोई अरेबिक सॉन्ग, तो मैंने 8 वर्षन गाए थे। और श्रीमान आशिक फिल्म आई थी जिसमें अनुपम खेर साहब की आवाज में मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ने गवाया था, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाए, सुबह शाम मत करो तुम, लड़की इनकी बेवफा अदाए। तो ऐसा मुझसे कराया गया। और जैसे एक फिल्म आई थी तिरंगा, नाना पाटेकर और राजकुमार जी, उसमें मोहम्मद अजीज साहब और मैं, पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी, उसमें सौदागर में दिलीप साहब और राजकुमार जी, फिर मुन्ना साहब और मैं, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। तो ये मुझसे करवाया गया सर। और मैं उसके बाद तेजाब में भी, मुझे पता नहीं था, अनिल कपूर जी बोले सुदेश मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, एक रील कर दे, तो एक रील मैंने मिस्टर इंडिया की थी। उसके बाद तेजाब के लिए, सेंसर के लिए एन चंद्रा साहब ने मुझसे वो फिल्म कराई। उससे पहले और उसके बाद मुझे अनिल कपूर की आवाज कभी नहीं आई, लेकिन
प्रीमियर भी मेरी आवाज में हुआ, और जब वो मिक्सिंग होने के बाद जब ये प्रिंट्स आई तो साउंड इंजीनियर कंफ्यूज हो गया कि सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा है और अनिल कपूर का ट्रैक कौन सा है। तो 25 प्रिंट्स मेरी आवाज में आज भी थिएटर में चलती जब भी। तो हैज मुझे पता नहीं कैसे होता है वो। माशाल्लाह, क्या बात है साहब। लेकिन क्या अनिल कपूर की आवाज बदली है? इतने सालों से आप उनको देख रहे हैं कि वैसी की वैसी? नहीं, ऑफ कोर्स वो एक एज के साथ थोड़े ग्रेन्स आते हैं, बेस बढ़ता है, तो वो अनिल कपूर साहब बोलते हैं कि वो अभी तक 25 साल के हैं। बोलने का अंदाज वही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा कि उन्होंने जो अपने आप को मेंटेन किया है मेरी तरह। नो सुदेश जी, बहुत मेहनत करते हैं वो। लेकिन हाउ डज ही टॉक? एक अनिल कपूर का कुछ समथिंग ऑफ अनिल कपूर प्लीज। अरे नहीं सर, मैं पता नहीं मुझे, मैं देखो इसमें अमोल पालेकर आ गया थोड़ा सा। हाँ, आपका प्रोग्राम एकदम झकास, चलते रहो। हाँ for the youth, you're an inspiration. Yes. Sudesh ji Bhosle sahab, you're an inspiration. Now, as you said, आप पेंटिंग करते थे बड़े चीज, and from painting you came straight to this. Now for the youth, and now you're a success. Now you're a super success. The whole world sees you as a success. तो ये इंस्पिरेशन ऑफ चेंज, ये मोटिवेट क्या होगा? नौजवान क्या समझे, कैसे वो इंस्पायर हो जाए? You are painting, from painting you have come here and now you're world renowned person. तो ये कैसे एक मोटिवेशन होगा यूथ के लिए? मैं सबसे पहले ये कहूंगा, इतने साल मैं ये कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है या मुझे ऐसे ऐसे मौके आते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि मुझे वो करना पड़ता है। लेकिन मैं सबसे कहूंगा, इवन मेरा बेटा बोलता है, पापा ही इज अ वेरी गुड कंपोजर एंड अ सिंगर, सिद्धांत भोसले, कि मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अपने बोले ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज भी लाखों लोग मुझे मिलते हैं एयरपोर्ट पे, मतलब पूरे विश्व में, वो मुझे कहते हैं, यू डोंट साउंड लाइक अमिताभ बच्चन, यू हैव नॉट संग जुम्मा चुम्मा। तो मुझे हाथ पैर जोड़कर उनको बताना पड़ता है, इट्स मी। तो बोले जैसे वो, रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के गर्द सबको घायल, ए कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा, no you don't sound like him, it's अमिताभ बच्चन। तो ये मैं नौजवानों को यही कहूंगा कि बच्चों कभी नकल ना करना। बट आप तो सक्सेस हो, नकल करके सक्सेस हो आप नहीं बिल्कुल जब लोग कहते ना कि वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल, you're not the voice of Amitabh Bachchan. No sir, I don't agree. I do not agree, Sudesh Bhosle sir. You are the voice of Bollywood. I am sorry. You are the voice of Bollywood. You are everybody's voice. अगर किसी की आवाज चली जाती है, they know they have a bank, and that is Sudesh Bhosle. And sir, बिल्कुल राइट। मुझे कई एक्टर्स ना फोन करते हैं कि सुदेश यार, 1 महीने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, एक रील बचे, प्लीज कर दो यार मेरे लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है। या कोई, जैसे मैं, ऐसा कोई किस्सा बताइए ना सर। आपने पिक्चर डब करी हो किसी और की आवाज में, प्लीज। नहीं, मैं अभी अपार्ट फ्रॉम जो अनिल कपूर की आपने बात करी, उसके अलावा नहीं, मैंने संजीव कुमार साहब की 5 फिल्में डब की हैं आफ्टर ही पास्ड अवे। लव एंड गॉड, वक्त, कत्ल, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की प्रोडक्शन, और अमित जी के कुछ, सब नहीं, कुछ एड फिल्म्स हिंदी में वो करते हैं, बाकी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में मैं करता हूँ, असमीज, नेपाली, पंजाबी, गुजराती। क्या बात। तो हाँ सर, वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं वो प्रोडक्ट का नाम नहीं बता सकता। जी, समझ। और ना, लेकिन अमित जी भी, मतलब जब कोई एड फिल्म की शूट करते तो पूछते हैं, हाँ सुदेश कर रहा है ना, बस। तो जैसे ऐसे मैंने सुना है, जब उन्होंने वो शायद पेटेंट बनाने का सोचा था, किसी एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने, दिल्ली के किसी एक कलाकार ने कुछ गलत डबिंग की थी शराब या टोबैको के, तो बहुत नाराज हो गए थे कि मैं अब किसी को अलाउ नहीं करूंगा। तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि सुदेश भोसले का क्या? नहीं, उसकी बात अलग है। तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन यहाँ मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, सुदेश जी, आपसे एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि आज तक कभी ऐसी सिचुएशन हुई है स्टेज के ऊपर, जी, आपसे कुछ करने के लिए कहा हो और वो बहुत मुश्किल लगा हो,
आपको? कभी ऐसा हुआ है? सर, ऊपर वाला बहुत दयालु है। मेरा क्या होता है ना कि कई कलाकारों के साथ, आपके साथ भी होता होगा कि पता चला कि सुबह आप उठ नहीं पा रहे जी। हो, आपको बुखार है, जी। पूरी हड्डी पसली दर्द कर रही है, जी। बुखार है, सर्दी है, मतलब आपको लगता है कि आज मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा। ऐसे कई बार सिचुएशंस आए, तो मैं शो से 1 घंटे पहले कैसे वैसे उठ के नहा धो के तैयार होके और मैं गाड़ी में भी बैठा हूं ऐसे, मतलब सर झुकाए, आंख नहीं खुल रही है, गला बैठा हुआ है, और स्टेज पे पैर रखते ही पता नहीं वो बीमारी, वो दर्द, वो खराश, वो सर्दी पता नहीं कहां से गायब हो जाती। जैसे ऑडियंस को देखता हूं ना, मेरे घर वाले पूछते ये कैसे हो गया, और ऑडियंस आके बोलती है सर आपको 30 साल पहले हमने देखा, उससे आप अच्छा कर गए आज। तो ये ऊपर वाले की कृपा के बगैर होता नहीं। I want to know for the youth, आपको देख के ऐसे लग रहा है कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, यानी आप जिधर टच किया इट्स अ मिडास टच, गोल्ड हो गए। कुछ आपके जिंदगी में परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज सो नेचुरल फॉर यू, अमिताभ बच्चन। बट एज यू बीच में आप कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, हार्ड वर्क इनटू इट। जैसे आपने कहा कि 10-10 घंटे 3-3 दिन में प्रयास किया, ये लोगों को मालूम नहीं। ये बोले कि भोसले साहब इतना इजीली नेचुरली सब करता है। So hardships, were they hardships or life has always been a good rosy bed for you all the time? And because ये इंस्पिरेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि लोग मायूस ना हो, कभी उल्टा सुल्टा लाइफ में होए। ऐसे भोसले साहब इज नॉट बेड ऑफ, बोले रोड ऑफ रोजेस नहीं है, थोड़ा दिक्कतें भी होते हैं। बिल्कुल दिक्कतें होती, बहुत होती है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, और मेरे पास आजकल व्हाट्सएप पे ना कई सिंगर्स जो मतलब मुंबई आ नहीं पा रहे हैं जी, तो वो अपने गाने भेजते हैं रिकॉर्डेड या कुछ लाइव शोज के। तो मैं उनको यही कहता हूं कि मुंबई आइए आप, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं आते ही सुपरस्टार बनूंगा, मैं लता मंगेशकर बनूंगी या मैं बच्चन साहब बनूंगा या किशोर कुमार बनूंगा। यहाँ हम लोग ना वर्ल्ड में, जैसे ये कृपा है हमारा, जो प्रोफेशन इतना अच्छा है कि दूसरे के खर्चे से हम लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं। और मैंने देखा है, हमने गांव-गांव में, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, इंडिया का एक गांव, एक गली नहीं छोड़ी हमने 45 ईयर में। तो मैं देखता हूं मेरे से 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड लड़के, टैलेंट है हमारे इंडिया में, लेकिन नसीब मैं थोड़ा मानता हूं क्योंकि उनके पास कलकत्ता से या यूपी से यहां आने के ट्रेन के पैसे नहीं उनके घर में। और मैं देखता हूं कि मैं कितना लकी हूं कि मेरी पैदाइश मुंबई में हुई, इसलिए मैं ये कर सका। और जो कहते हैं ना, हमने बहुत मेहनत की, हमने ये किया, हमको ये वो सब, मैं कहता हूं वो अगर आपने नहीं उसको फेस किया होगा ना, तो आपका सक्सेस नहीं है। सुदेश, यहाँ पर ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, सुदेश जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े अंदर से, भले आप ऊपर से दिखाएं या ना दिखाएं, अंदर से भगवान को आप बहुत मानते हैं, मुझको ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा। और अभी ना आप दिन में या कभी, हो सकता है कि आप पूरी फॉर्मल पूजा ना करते हों, लेकिन भगवान को किस रूप में आप याद करते हैं हमेशा, वो जरा बताएं प्लीज। मैं सबसे पहले, कहते हैं ना, हम लोग अब का जनरेशन है ना, गूगल को अपना गुरु मानता है ना। तो हमारे आप भी ना अपने मम्मी पापा को अपना गुरु और अपना भगवान मानते हैं जी, मानते हैं, अभी भी मानते हैं, आज वो नहीं, लेकिन अभी भी। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, मैं गोवा से हूँ, शिरोडा से हूँ, और कामाक्षी देवी, जो कामाख्या देवी है गुवाहाटी की, हमारे शिरोडा गांव में, गोवा में कामाक्षी देवी, अगर कुछ भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मम्मी ने एक ही सिखाया था, वो देख लेगी। तो मतलब नहीं समझता था, तो बोले फिक्र मत, वो देख लेगी। तो आज भी वो विश्वास है। आज भी कोई भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले अपनी मम्मी, पिताजी, नानी, फिर यहां से लेके लता जी, किशोर दा, रफी साहब, पंचम दा, सचिन दा, कल्याण जी भाई, लक्ष्मी जी, अनिल मोहिले, अरुण पौड़वाल, इन सबको मैं याद करता हूँ। फिर हमारे सारे देवी देवताओं को याद करके फिर मैं स्टेज पे कदम रखता हूँ या रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। तो ये जो एक बिलीफ है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है। कुछ प्रेयर करते हैं आप अपने मन में या नहीं, मैं प्रेयर मतलब सुबह उठ के घर से बाहर जाने से पहले, सोने से पहले कामाक्षी देवी को सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ, बस तू, तेरा आशीर्वाद रहे। पहले मैं मांगता था,
मुझे बंगला चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। अब मैं बोलता हूं देवी धन्यवाद, मैं थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं कर क्या सकता, बात। क्योंकि मैंने देखा है सर कि मेरे से 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हमारे देश में और बाहर हैं, जी। जिनको मौका नहीं मिला है, जी। मुझे मौका दिया, बस दैट्स जी। इट, और कुछ नहीं। और जबरदस्त। आज भी, और मैंने एक देखा कि 40 साल बाद, 45 साल बाद अब मुझे लोग ज्यादा प्यार करने लगे। एयरपोर्ट पे मैं देखता हूँ कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब हाथ जोड़ के बोलते सर प्लीज एक फोटो। मतलब ये मैं हूँ कौन की, मतलब मैं मेरी एक स्टाइल है, मेरे पहले ही गाने में मैं क्राउड में घुस जाता हूँ कि 50,000 क्राउड हो या 1 लाख बाउंसर्स परेशान हो जाते हैं, तो वो हाथ लगा के ओ माय गॉड, मतलब मैं शाहरुख खान थोड़ी ना हूँ, ये तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे नहीं, शाहरुख आपको खान नहीं का पता आप बर्थडे क्या- आज, कुछ बोलना चाहेंगे आप हाँ जी? शाहरुख खान साहब को? नहीं, आज मेरा बर्थडे है, आपने मुझे विश नहीं किया मेरे बंगले के बाहर, केक तो भेजिए। तो एनीवे सर, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। और जी, दुरुस्त बात स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं कर है। आप रवि साहब से मिले, एक्चुअली रफी साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई? मैं बदकिस्मती से देखो वापस बच गया मैं। रफी साहब और मुकेश जी से नहीं मिला, मैंने लता जी के साथ काम किया, आशा जी के साथ 86 से जी। अभी तक मैं कर रहा हूँ। अभी लास्ट में उनका 90th बर्थडे था दुबई में, उसमें मैं था। और सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट कि मैं कुछ दिन कुछ शोज में आशा जी के साथ नहीं था, तो आशा जी ने बोला सुदेश तू जब नहीं था ना, मैंने एक भी डुएट नहीं गाया, मैंने सिर्फ सोलो गाया। क्या बात तो है। कितनी बड़ी बात है, बोले तेरे ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत जबरदस्त। कंफर्टेबल हूं मैं तेरे। फैंटास्टिक। एकदम। तो जी। ये बड़े लोग जो है ना, किशोर दा, लता जी, आशा जी, बच्चन साहब, उनका बहुत आशीर्वाद मिला है। और Would you like to tell us? सबसे जी बोलिए, प्लीज प्लीज गो। ये सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे जो मिली थी वो थी महमूद साहब से। मैंने एक स्टेज पे गाना गाया, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मुतवा, सुन मेरे साथी। तो महमूद साहब ऑडियंस में बैठे थे, और जैसे ही गाना खत्म हुआ पीछे आए बैक स्टेज, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले बेटा जब तूने दादा का सुर लगाया, मैं तेरा चेहरा देख रहा था, तेरा ऊपर वाले के साथ कनेक्शन हो गया, मैं तुझसे जरूर गवाऊंगा। और उनकी आखिरी, उनका जो बेटा था दुश्मन दुनिया का फिल्म है, उन्होंने मुझसे गाना लिखवाया। तो ये काफी, मतलब ये जो सीनियर्स है ना, उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। अब क्योंकि मैंने एक हमेशा चीज ध्यान में रखी, मिमिक्री करते हुए, कॉमेडी करते हुए, तालियां बटोरने के लिए मैंने कभी किसी का आज तक मजाक नहीं उड़ाया। तो हर कोई आर्टिस्ट, विनोद खन्ना साहब के सामने उनकी आवाज मैंने बनाई थी, बहुत खुश हो गए थे। तो ये मैंने संभाल के जब वो एमपी थे या एमपी नहीं थे? एमपी नहीं थे वो, उससे पहले यूएसए टूर किया था उनके साथ। क्या बात है सर, वंडरफुल। चलते चलते किशोर दा के बारे में कुछ बताएं सर, किशोर दा के साथ आपकी रिलेशन कैसी रही? आज आप मैं- उनके सारे प्रोग्राम्स एक्टर मैं- करते थे, उनकी आवाज में जी, आपने जी। ना जाने कितने गाने गाए हैं। किशोर दा ही किशोर दा है, जिनकी वजह से आज जो भी मैं करता हूँ, किशोर, मैं सिंगर तो था, मिमिक्री आर्टिस्ट था, लेकिन एक एंटरटेनर, एक परफॉर्मर मैं किशोर दा की वजह से बना। क्योंकि गाने तो आप रेडियो पे, टीवी पे रोज देखते सुनते, लेकिन उसको ऑडियंस जी। को कैसे ये कराना कि ये हमारे लिए गा रहा है। परफॉर्मर और एंटरटेनर क्या होता है, अगर मैं गाऊं जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा, ये तो रोज सुनते हैं भाई, जुम्मा चुम्मा दे दे, ये करूं तो लोगों को लगता है यार मेरे लिए गा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अब मैं बोलूंगा, अगर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गाना मैं आपके सामने सुना रहा हूं, मेरे महबूब कयामत होगी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की संगीत रचना, किशोर कुमार की आवाज, और मेरे तो पब्लिक मालूम है गाना। अब मैं क्या करता हूं, एक नाकाम टूटे हुए दिल के आशिक की, मतलब ये सदा है,
नाकाम आशिक की टूटे हुए दिल की सदा है, आशिक कहता है या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, उन हसीनाओं को मत पैदा कर जो हमें बर्बाद करती है। पब्लिक वाह वाह वाह, मेरे महबूब, तालियां तालियां। तो ये एक स्टाइल रहती है प्रेजेंट करने का गाना। फैंटास्टिक। और किशोर दा हैं, इसलिए आज मैं हूं क्योंकि 5 साल उनको देखा सुना। एवरी संडे हम उनके बंगले पे रहते थे। मेरा काम कुछ नहीं होता था, मैं तो एंकर था, लेकिन सुबह 10 से लेकर रात के 8 9 10 बजे तक बस सिर्फ उनको देखता था। और वो जब स्टेज पे गाते थे, कुर्सी विंग्स में लगाकर, कहते ना सारी रिकॉर्डिंग यहाँ चलती रहती थी। क्या बात और है, fantastic। किशोर दा ने मुझे एक बार, तू बहुत अच्छा है रे, लेकिन एक काम करना, कभी सैगल साहब और संजीव कुमार का मजाक नहीं करना। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और कभी कभी मतलब सुदेश कुछ कर, मजर चाय पी के आता हूं, तो वो जाते जाते किशोर दा के लिए मैं जो कहना, उनके शो में यूएसए में ये जो गाना है अमित कुमार जी ने गाया और कंचन जी, लैला ओ लैला जी। लैला ऐसी तू लैला। तो ये गाना मैंने कहा, अगर आजकल के बच्चे फिल्मी ट्यून्स में ज्यादा रुचि लेते हैं, तो अगर लैला को अमित कुमार की जगह सहगल साहब बुलाते तो कैसे बुलाते, और गाने का लैला पे क्या असर होता। लैला हो लैला, अरे हाँ ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे तुझसे, अरे हाँ मिलना अकेला। उसके बाद हेमंत कुमार गाते, लैला हो लैला ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला रे। फिर जाते हम लोग पंचम दा के लिए, लैला हो लैला ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे तुझसे, चाहे तुझसे मिलना अकेला। ये ऐसे मत गाइए, लैला नहीं आ जाएंगी, ये आ जाएंगे, इसलिए मैं आपके पिताजी के पास जाते। तो लैला हो लैला रे तू लैला, अरे कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। तो लोगों ने यूएसए में इतनी तालियां बजाई, एकदम वंस मोर। तो मैं खुश हो गया कि किशोर कुमार के शो में सुदेश भोसले को वंस मोर। जब तालियां रुकी नहीं मेरे गाना खत्म होने के बाद भी, जब लोग हंसना बंद नहीं कर रहे थे, मतलब यार ये ऐसे कैसे इतनी तालियां मुझे। तो बाद में पता चला कि जब मैंने लैला लैला शुरू किया, तो किशोर दा मेरे पीछे खड़े होके शॉल लहरा के मेरी लैला पे डांस कर रहे थे, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे। Fantastic. एनीवे, Sudesh ji, it's been a great pleasure thank talking to you. you for calling me, sir. Thank you, Sir, thank it's a you. real pleasure. You must come to our studio. कभी अगर आप बीकेसी की तरफ अगर आप आएं तो जरूर स्टूडियो में आइए, हमारे साथ चाय और कॉफी पीजिए। It'll be an honor Great. to welcome you. Thank you, sir. और चलते चलते Thank you. अपने दर्शकों को और सुदेश भोसले साहब को भी बता दें, इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है अभी वानखेड़े में। जी, इंडिया ने तो बहुत जबरदस्त स्कोर बनाया है, 357 का स्कोर बनाया। श्रीलंका एट द मोमेंट, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, इज 22 for 7। 22 रन पे 7 विकेटें डाउन है श्रीलंका की। वंडरफुल, Very good. थैंक यू सो मच सुदेश भोसले साहब। thank you, thank you. ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you, sir. Thank you. Wonderful, wonderful. Oh God, that could have gone on forever. I mean, you know, that is It's amazing. always, you could go 24/7. That's right. You could hear him because You he's can got hear so him. much of material to tell. Yes, So brilliant. much. Absolutely And brilliant. every moment was informative, entertaining, and of substance. Fantastic. And he hasn't changed a bit. He hasn't changed one bit. And the other man, by the way, who looks absolutely dapper,